જય શ્રી કૃષ્ણ. નીકળી ગયો સવારમાં ભાઈ અને ભાભી સાથે ફિલાડેલ્ફિયામાં ફરવા. સૌથી પહેલાં તો બપોરનું જમવાનું પેક કરાવ્યું અને પછી પહોંચી ગયા અમેરિકાનું મૂળ જ્યાં નખાયું હતું એવી જગ્યા, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોલ. અને પછી જોયો લિબર્ટી બેલ. ચાલો આજે અમેરિકાના ઇતિહાસની વાતો મારા મજાકી અંદાજમાં કહું. લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ અચૂક કરી દેજો દોસ્તો. ચાલો ત્યારે આજે થોડુંક અમેરિકા બતાવું. તો દોસ્તો, આજનો ઇન્ટ્રો મસ્ત ગુજરાતીમાં રાખીએ. બધાને નવા વિડીયોમાં સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. અમે અત્યારે જો ક્યાં છીએ, ચિપોતલે આવ્યા છીએ. ભાઈ ને ભાભી આવ્યા છે ન્યૂ જર્સીથી, એની ભેગો અચલભાઈ અને વિરલભાભી. યસ, એટલે બસ જો કાર પડી છે આપણી, પાર્કિંગ મળ્યું એટલે એ બે ગયા અંદર. હું અહીંયા બહાર વિડીયો ચાલુ કરવા માટે આવતો રહ્યો. સો યસ, મસ્ત અત્યારે ચિપોટલે અહીંથી લઈએ છીએ. આપણે બાઉલ લીધું છે, બરાબર, વેજ બાઉલ. એટલે પછી જઈએ છીએ મોસ્ટલી ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોલ અને લિબર્ટી બેલ. આ બે છે ને અહીંનું કહેવાય ને કે આમ ફિલાડેલ્ફિયાનું ધ મોસ્ટ ફેમસ મોન્યુમેન્ટ્સ કહી શકાય ને એવું એમ. અને ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોલમાં જ અહીંનું કોન્સ્ટિટ્યુશન લખાણું હતું એક ટાઈમે. એટલે યસ, ત્યાં જઈએ છીએ, ત્યાં મસ્ત બેસીને ખાશું. અને અહીંયા હું કામ નથી ખાતા એનું રીઝન ખબર છે? કેમ કે અહીંયા પાર્કિંગ ન મળ્યું. એટલે બસ અમે વેઇટ કરીએ છીએ. એટલે ટૂંકમાં પછી અત્યારે છે કે પાર્કિંગ મળી ગયું, ત્યારે અમે ત્યાં સુધીમાં ટેક હવે કરવા માટે વયા ગયા હતા, હું ને ભાભી. એને પાર્કિંગ મળ્યું તો અચલભાઈ આવી ગયા અંદર. હવે અચલભાઈ હું નહીં કહું, એનું નામ છે લાલીભાઈ, એટલે અમે એને લાલીભાઈ કહીએ છીએ. સો લાઈક યસ, હું એને લાલીભાઈ જ કહીશ, એટલે તમે હવે લાલી જ સાંભળશો. હાલો તો નીકળીએ. મસ્ત લઈ લીધું છે, એટલે જઈએ અને બતાવું તમને ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોલ કેવો છે. તો આવો એ ગ્લાસ આપે, તમે બાઉલ ને એ બધું લ્યો ને, એટલે આમાં એ મિલમાં જ ગણાય છે. આમાંથી કોઈ બી તમે ડ્રિંક લઈ શકો. હવે આમાંથી કયું ડ્રિંક લેવું આપણે વિચારીએ. વેઇટ, ખબર નથી આપણને, બટ સ્ટીલ એટલે આપણે જે લેવું હોય અહીંથી ભરીને વયું જવાનું. અહીં કેપ્સ ને બધું પડ્યું હોય, સ્ટ્રોઝ ને એવું. ચાલો લો કોઈ भी. दोस्तों, हम आ गए हैं. मतलब ये जो है, ये पूरी लाइन जो आपको दिख रही है, ये है म्यूज़ियम यहाँ का. और इसमें अंदर है लिबर्टी बेल. और वो जो सामने ये बिल्डिंग दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ पहले. ये जो नीचे ब्रिक वाला पूरा ये दिख रहा है, वो है इंडिपेंडेंस हॉल. मतलब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साल तो पता नहीं है, मैं अगर उधर जाऊंगा तो बताऊंगा कौन सी साल में लिखा गया था, पर ये यहाँ पे लिखा गया था अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन. और लिबर्टी बेल जो है, एक बेल है, वो इसके अंदर है, ये म्यूज़ियम के अंदर. और बाकी काफ़ी आजू बाजू अलग अलग म्यूज़ियम है. इंडिपेंडेंस विजिटर सेंटर है अलग अलग. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर है आगे. और ये सभी है. मतलब देखते हैं अपन, अगर टाइम रहा तो इधर जाएंगे. यहाँ पे टाइम स्लॉट लेना पड़ता है. मतलब मिलता है, सभी को देखने मिलता है, पर ये आपको ऑनलाइन स्लॉट बुक करके फिर आना पड़ता है. तो ये सभी हम तो यहाँ पे बैठे हैं. यहाँ पे जो बेंचेस हैं वहाँ पे थोड़ा खाना खाते हैं पहले, फिर देखते हैं अगर स्लॉट मिलता है, स्लॉट लेते हैं, क्या पता. तो जाएंगे इधर, आपको दिखाऊँगा कि क्या है अंदर. और यस, बस इतना था अभी तो कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फिलाडेल्फिया को अमेरिका का ओरिजिन बोलते हैं. सो फिलाडेल्फिया इज़ द ओरिजिन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो और फिलाडेल्फिया पहले यहाँ की मतलब कैपिटल था यहाँ का, अमेरिका का. सो यस, ये दोनों मतलब यहाँ के मोन्यूमेंट माने जाते हैं. और वीज़ा क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट फिलाडेल्फिया, देन यू कैन से कि यहाँ पे दो मेन मोन्यूमेंट्स है, लिबर्टी बेल एंड इंडिपेंडेंस हॉल. यस, तो चलिए थोड़ा खाना खाते हैं, फिर देखते हैं. આવું કંઈક છે દોસ્તો, બરીટો બાઉલ, અને અહીંયા ભેગું આપણું ડ્રિંક. અને એ પહેલાં તમને બતાવું ને તો આ મેં મિક્સ કરી દીધું છે, પણ એ પહેલાં આવું હતું, જો આવું. યસ, એટલે એ બધું આમ અલગ અલગ આમ પ્લેસ કરેલું હોય, બટ સ્ટીલ હવે મિક્સ કરી દે એટલે આવું લાગે. चलो तो एंजॉय कर लिए, પછી મળું. दोस्तों, हमने एक्सप्लोर करना सभी चालू कर दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1682 में फिलाडेल्फिया फाउंड हुआ था. तब था ब्रिटिशर का मतलब रूलर. तो बस यस, तो अभी और इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस डे था इन लोगों का 1776, 1776 में. और उस टाइम पे ये थी प्रेसिडेंट की ऑफिस. तो मतलब प्रेसिडेंट का कुछ हाउस मतलब देखे तो ये है मेन हाउस, बराबर. तो ये जो था, वो जो ये एरिया आप देख रहे हैं, वो था प्रेसिडेंट का मेन हाउस. उसके आगे प्रेसिडेंट्स ऑफिस. सो लाइक ये जो एरिया है, यहाँ ये प्रिजर्व किया हुआ है. ये 400 साल पुरानी सभी ब्रिक्स और वो सब है. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट मतलब बैठते थे.
और यहाँ से आगे आगे है कोच हाउस। यहाँ पे जो वो स्लेव लाए थे, देखिए इनस्लेव्ड वर्कर्स डाइनिंग हॉल। सो लाइक यहाँ पे किचन था आगे, और मेन आगे था लिबर्टी बेल सेंटर। तो यहाँ से आगे है लिबर्टी बेल सेंटर। तो पहले लिबर्टी बेल जो था वो इंडिपेंडेंस हॉल के ऊपर लगा हुआ था, फिर उसमें मतलब दरार आ गई, तो अभी वो यहाँ पे देखने के लिए रखा गया है बस। और यस, तो अभी चलिए देखते जाते हैं, सभी आपको हिस्ट्री थोड़ी बताते जाते हैं अमेरिका की क्या हिस्ट्री है। और मतलब ब्रिटिशर्स का मतलब शासन सभी जगह था, तो यहाँ पे भी था, पर यहाँ से जल्दी चले गए, हमारे वहाँ से थोड़ा लेट गए, हमारे वहाँ से मतलब इंडिया से। तो यस, चलिए देखते हैं क्या क्या रहता है आगे, बताता हूँ आपको सब कुछ। तो दोस्तों ये है यहाँ का मेन इंडिपेंडेंस हॉल, और आपको मैं पहले बेल दिखा देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ जो मेन जो बेल था, मैंने आपको भी बताया लिबर्टी बेल, वो जो पहले वाला जहाँ जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस हुआ था वो वाला बेल अभी यहाँ पे देखने के लिए रख दिया है। उसमें मतलब मैं बोला दरार पड़ गई है। ये दूसरा वाला बेल लगाया है, और ये मतलब हर 1 घंटे बजता है। अभी एक बजा है अभी, तो 1 बार बजा था, 2 बजता है तो 2 बार बजता है, 3 पे 3 बार ऐसा। और मेन यस, इसमें ऐसा था कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो ये जो वो इंडिपेंडेंस का जो लेटर बोला, डिक्लेरेशन, यस, तो डिक्लेरेशन पढ़ के जो सुनाया था, तो उस टाइम पे ये बेल बजा के सबको इकट्ठा किया था। तो यस वो है। और ये अगर मैंने तो कभी नहीं देखा था, अभी ये बताया कि $100 का जो बिल है, उसके पीछे ये मेन इंडिपेंडेंस हॉल और लिबर्टी बेल का जो है मेन फोटो है, ये एग्जैक्टली यस, ये आज हमें पता चल गया। અને બધા બિલ્સમાં અલગ અલગ ફોટા હશે ને, બધા બિલમાં અલગ, યસ। સો લાઈક $100 સૌથી મોટી કરન્સી જ છે ને, મોટી કરન્સી, यस। सो सबसे बड़ी करेंसी के पीछे मतलब ये इंडिपेंडेंस हॉल और लिबर्टी बेल का फ़ोटो है। और यस, चलिए अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है। लिबर्टी बेल आपको दिखाता हूँ, और दूसरा क्या है वो भी देखते हैं, चलिए। ये बिल्डिंग का नाम है पेंसिल्वेनिया स्टेट हाउस बेल, और यहाँ पे अंदर आते वक्त पहले ये सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है। मतलब जो भी चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं उसको एक बार स्कैन कराना पड़ता है, एयरपोर्ट पे जैसे होता है वैसे, और फिर यहाँ पे आगे मतलब जा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों द स्टेट हाउस बेल बोला जाता था, फिर अभी इसका नाम द लिबर्टी बेल है। और ये ऐसे क्रैक हो गया है इसमें, इसलिए जो पहले वाला जो मतलब जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो था वो वाला बेल यहाँ पे देखने के लिए रख दिया है, और उधर मतलब अभी वर्किंग बेल है वो दूसरा लगा दिया है। ऐसा टाइप का क्रैक हो गया था। मैं अगर देखने मिलता है तो दिखाऊंगा। ये अमेरिकाज़ लिबर्टी बेल है, तो शायद होगा देखने का। तो चलिए चलते हैं उधर। तो दोस्तों ये बेल का मेन टूटने का कारण ये है, द बेल फर्स्ट क्रैक्ड सून आफ्टर अराइविंग इन फिलाडेल्फिया बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबल मिक्स ऑफ मेटल्स। सो लाइक जो धातु थी इसमें वो अनस्टेबली मिक्स, मतलब ठीक तरह से मिक्स नहीं की थी, उसकी वजह से ये 1752 में ही टूट गया था। फिर उसको जॉन पास और जॉन स्टो उन्होंने रिपेयर किया, रिकास्ट किया। तो इसके ऊपर बेल के ऊपर पास्ट एंड स्टो लिखा भी हुआ है, मैं दिखाता हूँ आगे। फिर उसको मतलब पहले टूट गया था, फिर बदल के यहाँ रख दिया। दोस्तों एक चीज़ ये पता चली कि लिबर्टी बेल जो पहले बजाया गया था वो अमेरिका की फ्रीडम के लिए बजाया गया था। दूसरा उसका स्टेटमेंट ये था कि 1844 में ये स्लेवरी से फ्री होने के लिए ये स्टेटमेंट दिया था कि ये बेल तब तक बजाते रहो जब तक स्लेवरी मुक्त ना हो। और उसके बाद 1915 में इसके लिए ये बजाया गया था, मतलब लिटरल बजाते नहीं है, पर वो मतलब एक विरुद्ध, एक उस टाइप का सूचक वो बेल है। 1915 में ये वुमन राइट के लिए मतलब ये बेल का सूचक दिया गया था कि जब वुमन को सभी राइट मिलेंगे तभी कंप्लीशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पूरी डेमोक्रेसी तब ख़त्म होगी जब ये बेल वुमन के लिए बजेगा। तो ये ऐसा सब है। और बेल का काफ़ी अलग अलग मतलब रीज़न्स है वो बजाने के। तो यस, ये मैंने कुछ रीज़न्स आपको बताए। काफ़ी देर से बोल रहा हूँ कि ये बेल दिखाता हूँ, सच में दिखाता हूँ। चलिए। तो दोस्तों ये है जो पहले जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे था वो वाला लिबर्टी बेल, और मैंने जैसे आपको बोला कि ये पास एंड स्टो द्वारा मतलब रिकास्ट किया गया था, तो इसका नाम भी लिखा है, देखो। तो यस, ये जो अभी ये तो थोड़ा खंडित है,
पर यस ये देखने के लिए रखा है। और एग्जैक्ट जो अभी जो बेल है उसके आगे ही मतलब रखा है, ये इंडिपेंडेंस हॉल, उसके ऊपर का वर्किंग बेल और ये आगे सबसे पहले वाला बेल। तो यस ये है, और ऐसे ये टूट गया था। दोस्तों अभी हम आ गए इंडिपेंडेंस हॉल देखने, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मतलब ये जो ब्रिक्स देख रहे हैं, ये ईंट वो 250 साल से भी ऊपर के पुरानी है। मतलब ये जैसी उस टाइम थी उसी कंडीशन में इसको मतलब प्रिजर्व किया गया है। और ये बिल्डिंग मतलब इनके मतलब साफ़ करने का और वो सब का भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब $1 मिलियन का होता है। तो यस चलिए देखते हैं अंदर क्या है, और यस दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये थी यहाँ की जो कोर्ट थी, जो ऊपर है वो जज पैनल है, और यहाँ पे मतलब कटघरा और वो सब है। मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूँ, ये लोग इसलिए दिखेगा तो नहीं ज़्यादा, पर ट्राई करता हूँ। चलिए ये जब से बना है ये बिल्डिंग तब से मतलब 250 साल पुरानी कोर्ट है ये, 250 के भी ऊपर पुरानी। हाँ यस तो ये ऐसा है। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे कांग्रेस बैठती थी। वहाँ पे जो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन जी, वो उधर बैठते थे। और जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई को, वो इन लोगों ने मतलब जो यहाँ पे बैठे थे उन लोगों ने मतलब डिसाइड किया था कि 2 जुलाई को ही सभी ने मतलब वो डिसाइड कर लिया था कि इंडिपेंडेंट हो गया। पर वो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट लिखने में 2 दिन लगे, इसलिए वो 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और मेनली वो सिर्फ डिक्लेयर कर दिया था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट हम हो गए, वो सच में नहीं हुए थे। उसके बाद 10 साल मतलब फ़ाइट चली, वॉर चला, फिर जाके ब्रिटिशर सच में गए। और सच मतलब इंडिया में जैसे हम 1947 15 अगस्त को जैसे चले गए थे फिर हम मनाते, वैसे यहाँ पे नहीं है। डिक्लेयर कर दिया कि हम भाई हो गए इंडिपेंडेंट, फिर वो गए और फिर इंडिपेंडेंट हुआ। तो यस ये था। और यहाँ पे कांग्रेस बैठती थी, सामने थे सुप्रीम कोर्ट, और एक विंग है। मैं उन तीनों का जो कनेक्शन है वो आपको समझाता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अभी कांग्रेस हॉल में, और मैंने अभी ये मतलब एक तो पहले देखा कि ये जो कांग्रेस हॉल, ये जो कांग्रेस वर्ड है ना, वो कांग्रेस ऐसे नहीं है कि भाई एक पार्टी है। पार्टी तो डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन दोनों है, पर उसके सभी के ऊपर कांग्रेस माने आप समझ लो लोकसभा रख लो। चलिए कांग्रेस मतलब वो, तो हम उन लोगों के मतलब ये आप बोल सकते हैं राज्यसभा। हम अगर इंडिया से कंपेयर करें तो ये राज्यसभा बोल सकते हैं, इसके ऊपर लोकसभा है। तो पहला जो वो डिसीज़न होता है वो यहाँ पे आता है, कोई भी एक लॉ होता है तो वो यहाँ से पास होता है, फिर लोकसभा जाता है, मतलब यहाँ पे ऊपर जो हाउस है उधर, फिर प्रेसिडेंशियल साइन के लिए जाता है। तो यस तो ये हम ये हाउस में खड़े हैं, और ये भी 1750 के आसपास का है। और मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे ही 3 चीज़ है। एक है कांग्रेस मतलब लेजिस्लेटिव कमेटी, दूसरी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, और तीसरी है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आपने देखी, उसके सामने थी वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट थी, एग्जीक्यूटिव मतलब एरिया था। और ये है कांग्रेस का मतलब वो लेजिस्लेटिव एरिया। तो मतलब आप अगर तीनों में कनेक्शन समझाऊँ तो ऐसा है कि मान लो कांग्रेस ने एक लॉ बना दिया, पास कर दिया, उसको एग्जीक्यूट करना मतलब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यस इमिग्रेशन मेरा मतलब मैं इमिग्रेंट हूँ तो मेरे लिए ये लॉ लागू पड़ेगा, ऐसा उन्होंने मतलब कांग्रेस ने एक लॉ बना दिया। कांग्रेस मतलब पार्टी नहीं, अपना समझ रहे हैं ना, मतलब क्या मतलब ये सब पास राज्यसभा लोकसभा में सब में से पास होके ये बन गया। फिर वो जाता है एग्जीक्यूटिव में, तो एग्जीक्यूटिव ये लॉ एग्जीक्यूट करता है कि मेरे मतलब वेद तारपरा है उसके ऊपर ये लॉ कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब उसको क्या क्या मतलब उसके अंडर में क्या क्या आता है, मतलब वो मेरे अंडर में नहीं, मैं किस किस के अंडर में आता हूँ, वो एग्जीक्यूट करने का मतलब वो जिम्मा है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी उठाती है। और अगर उसमें कुछ फ्लो आया, उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ तो वो जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास।
सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न रहता है वो फिर से आता है कांग्रेस के पास। मतलब आप समझ रहे हैं, हर एक पूरा राउंड मतलब घूम जाता है, हर एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो ये उस टाइम से, जब से वो इंडिपेंडेंट होने का सोच रहे थे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया, तब से ये 3 मेन कमेटी जो है वो बनी है। अभी यहाँ पे जो था मतलब उस टाइम का ये फिलाडेल्फिया है, वो लाइक ओरिजिन ऑफ अमेरिका बोल सकते हैं, और वो उस टाइम पे यहाँ की कैपिटल है यहाँ का। अभी ये सभी चीज़ें हैं वो वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी यहाँ से नीचे पड़ता है, मतलब साउथ में। लाइक अमेरिका का मैप देखेंगे तो पेंसिल्वेनिया के थोड़ा लेफ़्ट साइड साउथ में, मतलब नीचे थोड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं वेस्ट साउथ में थोड़ा पड़ता है। तो ये हाँ, अभी ये सभी चीज़ें, ये सभी मतलब लोकसभा, विधानसभा, सॉरी राज्यसभा, यहाँ पे ऐसा वर्ड्स नहीं है, पर ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो सभी अभी वॉशिंगटन डीसी में है। और यस, ये मतलब उस टाइम पे हाउस था, यहाँ पे सभी बैठते थे और यहाँ पे सब डिसीजंस पास होते थे। और यस, यहाँ के जो अमेंडमेंट है वो 27 अमेंडमेंट्स है। तो पूरे मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि अभी जो है मतलब मेन जो कंट्री गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसमें 27 अमेंडमेंट्स है। मतलब वो उसमें से कोई भी लॉ बनाना होता है तो वो 27 अमेंडमेंट में से पास होना चाहिए, बस कैसे भी। आप उसका कोई एक भी वर्ड पकड़ के अगर उसमें कुछ फ्लो और लॉ बना दो तो चलता है, पर उस 27 जो लाइन लिखी है उसमें से वो पास करना चाहिए। और अमेरिका की ये सिस्टम है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एक अलग अथॉरिटी दी है उनके अलग लॉ बनाने की, तो वो अपने खुद के लॉ बना सकते हैं। पर अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट मतलब कोई लॉ बनाती है वो सभी स्टेट को मतलब लागू पड़ जाता है, मतलब सभी को मानना पड़ता है। पर अगर वो स्टेट, अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और स्टेट ने उसके सामने कोई उसका मतलब ऑपोजिट का कुछ लॉ बना दिया तो वो स्टेट लॉ नहीं चलता। बाकी स्टेट को पूरी अथॉरिटी है, वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, पर बाकी जो फेडरल बना है वो सभी स्टेट को मानना पड़ता है। और ये मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि जब अमेरिका बना था तब 1790 में अमेरिका बना था, नहीं मतलब 1790 में उनके इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद इतने स्टेट थे, ये जो येलो वाले दिख रहे हैं ना, ये 13 स्टेट्स हैं। उसके बाद उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि जो जो नए स्टेट इसके साथ जुड़ते जाएंगे तो हम रखेंगे ये 13 स्टेट्स ही। पर अगर मान लो कि ये केंटकी है वो यहाँ पे जुड़ गया तो ये वर्जीनिया को बड़ा कर देंगे, मतलब ये पूरा वर्जीनिया कहलाएगा। पर उसमें हुआ ऐसा कि मान लो कि ये वर्जीनिया के लिए ठीक है, पेंसिल्वेनिया के लिए ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना के लिए ठीक है, पर न्यू जर्सी, डेलावेयर जैसे स्टेट्स क्या करें, मतलब यहाँ से कोई एरिया जुड़ा तो वो तो पेंसिल्वेनिया बड़ा हो गया ना, न्यू जर्सी तो जितना था उतना ही रहेगा क्योंकि वो तो पेंसिल्वेनिया की इस साइड है। फिर ऐसा हुआ कि जो जो नए स्टेट्स जुड़ते गए उनके नाम ही अलग देते गए ये लोग, कि भाई जो आया मतलब कैलिफोर्निया आया, वो मतलब इस साइड से डलास, टेक्सास, वो जो टेक्सास स्टेट है, डलास तो सिटी है सॉरी, हाँ टेक्सास आया तो उसका अलग स्टेट, मतलब ऐसा फिर किया। और अभी टोटल 50 स्टेट्स है। और ये जो एरिया मैं बोल रहा हूँ वो उसका एक मतलब लॉ के हिसाब से उसका है कि पहले ऐसा था यहाँ पे कि सभी को यहाँ पे सीट्स जो मिलती है वोटिंग की सीट्स, उसमें ऐसा था कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीट देते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में यहाँ पे पर स्टेट 2 सीट, मतलब 50 स्टेट है अभी 100। अब अगर आपकी पॉपुलेशन 100 मिलियन है, 10 मिलियन है, 1 मिलियन है, फिर भी 2 सीट। तो यस, अभी तो ऐसा था, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, अभी कुछ पता चलता है तो बताता जाता हूँ। चलिए तो दोस्तों, फिर बारिश थी इसलिए कुछ ज़्यादा तो दिखा नहीं पाया, बहुत बारिश थी इसलिए छाते में से तो क्या ही दिखाता, खुद में बचता कि आपको दिखाता। तो यस, अभी घर पे आ गया हूँ, भैया भाभी चले गए, मज़ा आया मतलब कल शाम को और आज भी पूरा दिन। और अभी आ गया हूँ घर पे और अभी वीडियो रेंडरिंग में रख दी। आज की ये जो वीडियो है वो पहली हिंदी वाली वीडियो है, मतलब 22 तारीख की ये वीडियो है जो आज लाइव होगी। और साथ में मुरमुरा और ये डेट्स, आप क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? खजूरी होता है ना, खजूर। तो यस, तो हाँ वो दोनों खाना चालू कर दिया, चटर पटर। मुझे ये कुछ चटर पटर अच्छा लगता है। अच्छा है, ये दक्षा मासी ने ये सब नाश्ता दिया है तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। बाकी
वहाँ से भार्गव भाई के घर से भी थोड़ा नाश्ता लाया हूँ, तो अपना चलता रहता है। बस ऐसा नाश्ता मिलता जाए, साथ में काम चलता जाए, મજાની લાઈફ યુ નો। તો હા, બસ અત્યારે વિડીયો એડિટ કરવા મૂકી દીધો। સાંજનું આપણું જમવાનું સેટ છે, કેમ કે ઓલું જે બરીટોનું બાઉલ છે એ આપણાથી અડધું જ પૈતું હતું, હજી અડધું બાકી છે, એટલે ડન છે। ચાલો અત્યારે એડિટનું આ પતાવી, થોડુંક બીજું કામ છે કોલેજનું એ કરી દઉં, પછી અત્યારે નાસ્તો છે એ પતી જાય, પછી સાંજે મસ્ત જમીએ। અને यस, अभी खेलने जाना था निखिल भाई के साथ, पर बारिश के कारण वो भी अभी अटक गया है। बारिश रुकेगी तो सोचेंगे, बाकी तो यस अभी घर पे तो है, काम चल रहा है, देखते हैं, दिखाता हूँ क्या होता है आगे। તો દોસ્તો આપણું જે હાફ બરીટો બાઉલ હતું એ અને સ્વીટમાં જે સુખડી છે એ મસ્ત આપણે અત્યારે જમી લઈએ, અને મોજ આવી હતી। એટલે મોસ્ટલી એવો વિચાર છે કે સોમવારે છે એ મારે ફૂલ આમ પેક ડે હોય છે, સવાર 9 થી 12 લેક્ચર, સાંજે 6 થી 9 લેક્ચર, એટલે જો મેળ આવે તો પછી તે દી આપણે આ ખાઈ લઈએ તો ચાલે એમ। $11 જેવું છે કંઈક આ, એટલે 2 ટાઈમ મારે તો હાલી જાય એમ, એટલે $5-5 $5.5 મિલ થઈ ગયું મારે તો આ, એટલે યસ આવું છે। અને બાકી જેરેમાયા છે ને એની વાઈફ માટે ગિફ્ટ બનાવે છે, બરોબર, તો હમણાં એ પતી જાય ને એટલે હું બતાવું તમને, બરોબર। એ એક મસ્ત વસ્તુ બતાવે છે, હાલો ટૂંકમાં બનાવે છે, સોરી, એટલે પહેલાં જમી લઉં અને એ જે બનાવે છે એ હમણાં બતાવું તમને, હાલો। दोस्तों कचरा फेंकने जा रहा हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे, मतलब ये कचरा कैसे फेंकते हैं। ये स्पेशल देखो ऐसे रूम ही होता है, ट्रैश रूम, तो बस यहाँ पे फेंकते हैं, दिखाता हूँ मैं अंदर आपको कैसा है और कैसे फेंकते हैं। ऐसे खोलने का, यहाँ पे लाइट चालू करने का, फिर ये जो है रबिश लिखा है, उधर आप कचरा फेंक सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे फेंक सकते हैं। ऐसी बैग्स में भर के ही आप फेंक सकते हैं, मतलब अगर अलग से आप ये अलग अलग करके सब फेंक देते हैं तो वो नहीं चलता। अभी ये डब्बा गिर गया तो वो भी डालना पड़ेगा। भाई हाथ खराब होते हैं इसमें। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो डोर था वो ये वाला जो डोर है, मतलब यहाँ जो 3 डोर दिख रहे हैं उसमें से बीच वाला था, और मेरा जो फ्लैट है वो यहाँ ये लॉबी के लास्ट वाला है, ये वाला। चलिए फिर चलते हैं घर पे। खाना पीना वो सब तो हो गया, अभी बस बर्तन करने हैं थोड़े, मतलब 2 ही, एक पतीली है और एक चम्मच है, बस उतना ही है, वो कर लेते हैं और फिर मस्त से सो जाता है। ये जो हॉलवे है ना, ये बहुत ही ठंडा रहता है। घर का टेम्परेचर मान लो हमने अभी रखा है 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब फ़ारेनहीट में होता है, इसलिए हमारा घर का टेम्परेचर रहता है 72 से लेकर 75 के बीच फ़ारेनहीट में। तो हाँ, और बाहर का टेम्परेचर अभी देखने जाओ तो होगा शायद से 18 के आसपास, मतलब ये सिटी का। पर ये जो हॉलवे है उसका टेम्परेचर पता नहीं क्यों ये लोग 15 रखते हैं, क्या पता भाई। मतलब यहाँ पे निकलो तो भाई पूरा ठंडी, घर में जाओ तो गर्मी, बाहर चले जाओ तो भी गर्मी, बस यहाँ ही ठंडी। क्या पता क्या ये लोग को क्या होता है। चलिए फिर घर पहुँच गए। दोस्तों मैं बोल रहा था ना कि जेरेमाया ने एक मस्त चीज़ बनाई है, मतलब वो उसकी वाइफ को पता है क्या गिफ्ट है, पर फिर भी जो मेहनत करके भाई ने बनाया है, अभी 12 बजे, वो 6 बजे से लगा है। और चीज़ क्या है मैं दिखाता हूँ पहले, ये देखिए, उसने मतलब उसकी वाइफ की फेवरेट बुक पे हार्ट बनाया है, और ये दिस इज 300 पेजेस, 450 but you use 300. Yeah, I use 300. Okay. Yeah. 300 पेजेस का यूज करके मतलब उसने मतलब वो हार्ट शेप बनाया है,
क्योंकि your wife's birthday is like October 2nd. October 2nd, so he will be going there to meet his wife on 1st October, right? Yeah, 1st October. Yeah. तो मतलब वाइफ को गिफ्ट देने के लिए उसके बर्थडे पे ये गिफ्ट बनाई है भाई ने. और एंड यू हैव द लाइक एंगेजमेंट ऑन दैट डे. Yeah. On the 2nd October. On the 2nd, yeah. Oh, On okay. that side. એટલે મેં એમ કીધું હતું ને લગ્ન થઈ ગયા છે એમ, પણ લગ્નનું આખું કઈ રીતનો સીન હશે ને હવે પાછી એંગેજમેન્ટ હું કામ છે તમે સમજી લી તમારી રીતે. બટ યસ ભાઈને મતલબ યે એન્ડ વોટ યુ વોન્ટ ટુ ટેલ લાઈક વન સેન્ટેન્સ અબાઉટ યોર વાઇફ. My Anything wife. you want. Anything I want? Yeah. Damn, it's too much to say about my wife. It's so much to Oh, say. is it too much? It's a lot to Okay, say. then, Yeah. then you can say like 5 sentences as well. My wife, she's beautiful. Mhm. Well, Yeah. She's smart. She's a loving person. She's very caring, and she's a very hardworking person. Very hardworking. Yeah. And yeah. मतलब अगर उनके एक्सेंट समझना है तो पहला बोला कि वो बहुत खूबसूरत है, दूसरा बोला कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है, केयरिंग है, और हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, केयरिंग. यस, नाइस नाइस नाइस. देन या हैव अ हैप्पी बर्थडे टू यू एंड योर वाइफ. If she's watching this, Yeah. I love you, Puntu. Oh. I love her. So like her nickname is Puntu. Puntu. Oh, nice You one. know what that means? No, I don't So know. like in Nepali, it means like someone who's short in a loving way. Okay, right. Yes, Yeah. yes. Nice one. So Yeah. have a happy engagement. Thank you, guys. Yeah. ऐसा था भाई का गिफ्ट. भाई बहुत बढ़िया. एक बार और दिखा देता हूँ कि ऐसा है गिफ्ट भाई का. मतलब ये स्केल लेके लगा था 6 बजे से, अभी 12 बजे ये बन के ख़त्म हुआ और वो अपनी वाइफ से ही बात कर रहा है वीडियो कॉल पे. Yes, sir. चलो देख लिया ना भाई. मतलब ऐसा टाइप का भी कोई गिफ्ट दे सकता है. मैंने ये आज देखा, ये पहली बार मतलब ये बुक लेके हाथ में बैठा, पर स्टिल ये जो बना है भाई बहुत बढ़िया. मतलब वो भी उसके वाइफ के जो पसंद की बुक है उसमें ही. अलग लेवल भाई, अलग लेवल. 9 महीना छोटा है भाई, फिर भी वो जो रोमांस की जो बात आती है भाई, यहाँ के लोगों में पहले से ही है भाई. कोई नहीं, चलिए बस आज का व्लॉग इधर ही रखते हैं. मैं अभी सो जाता हूँ. તો મળશું આપણે નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. જેવો લાગ્યો એવો મને કહી દેજો, કોમેન્ટ કરી દેજો અચૂક, બરોબર છે. અને યસ, નોરતા ચાલુ છે તો બધાય કાંઈ નહીં તો જય માતાજી તો લખતા જ રહેજો, એટલીસ્ટ જય અંબે, જય માતાજી બધું જ. અને બસ કાલે પાછું ક્લાસમાં જવાનું છે. ગુરુવાર છે કાલે એટલે જવાનું જ ક્લાસમાં. સાંજે 6 થી 9નો ક્લાસ છે. અને બેંકનું કાલે કામ કરવું કે ન કરવું મને ખબર નથી, કેમ કે મારે ઈ સાઈડ જ IFS જે ઓલું છે, ઇન્ડિયન જ થઈ જાય, આવે ને એટલે ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ, ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ્સ એન્ડ સ્પાઇસીસ, IFS. તો મારે ત્યાં કદાચ દહીં લેવા જવાનું છે. દહીં લેવા જાવ તો ત્યાં ફ્રોઝન સમોસા ને એવું મળે, ખાલી તળી લેવાના કે માઇક્રોવેવ કરી લેવાના કે એવું. તો એ કંઈક લેતા આવશું આપણે. થોડું ખાવાના તો આપણે બનાવવાના તો ચોર છીએ જ એમ. એટલે એ તો અત્યારે શરૂઆતમાં એવું થાય, ધીમે ધીમે પછી આદત પડતી જાય, બનાવતા જવું. એટલે યસ કાલ જવાનું છે ક્લાસમાં, એ બધું કામ કરવાનું છે. એમાંથી કેટલું થાય, શું થાય, ક્યારે ઉઠાય, બધું જોયું જશે. બાકી તમને ખબર તો પડી જ જાય કે હું શું કરું છું. તો કાંઈ વાંધો નહીં, મળશું નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બધાએ પહેલાં તો આ વિડીયોને લાઈક કરી દો દોસ્તો, અને લાઈકથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. સપોર્ટ ગાઈસ, સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. ચાલો બરોબર. અને શેર તો કરતા જઈશો તમે, અને ન કરતા હોય તો ફટાફટ કોઈ બી એક વિડીયો આખી ચેનલનો તમારા કોઈ બી એક ફ્રેન્ડને શેર કરી આવો જાઓ. એટલે એક તો મિનિમમ, પછી વધારે તમારે શેર કરવો હોય બીજા કોઈ ફ્રેન્ડને તો આમ કહેવાય હું તો ખુશ જ થઈશ એમ. મળશું નેક્સ્ટ વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી બધા ખુશ રહેજો, મસ્ત રહેજો, આબાદ રહેજો, હસતા રહેજો અને ખાતા પીતા રહેજો. મળીએ છીએ. ચલો બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ. ये मतलब आमा એવું હતું ને કે ટૂંકમાં હા मतलब एक बोलते हैं ना कि क्या मतलब वर्ड याद नहीं आ रहा.